Assalamu alaikum students, welcome in history class. I hope you will have very good health. It's time to study the Lahore Resolution. Today we will discuss the Lahore Resolution. ये आपका जो है हिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन पेज नंबर 62 में ये हम कवर करेंगे इस लेक्चर में. Let's move and see the sequence of lecture. Sequence of lecture will be कायदे आज़म sequence of lecture है जी. What was the resolution and कायदे आज़म्स address, proceedings of resolution, significance of Lahore resolution. और next हम देखते हैं कि what will we learn in this lecture. इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं कि students will learn the answer of following question. There are two fundamental questions which are to be answered in this particular lecture, and we will cover the key points and general topic of Lahore Resolution. Question number 1 है describe the Lahore Resolution and its significance. लाहौर रेजोल्यूशन को डिस्क्राइब करें और उसकी सिग्निफिकेंस बताएं. And second question, why is Pakistan resolution important landmark in Pakistan movement? तो इसमें आपने ये बताना है कि ये लैंडमार्क इम्पोर्टेंट लैंडमार्क क्यों है पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर. At first we will discuss the key points of this lecture so that you can well aware before the lecture. Well, the concept clearance is necessary. Therefore, we will discuss the key points of lecture so that you can grasp the concept of this whole lecture. Next, move and see what are the key points of lecture. At first known as Lahore Resolution, later on became the Pakistan Resolution. This resolution was first known as Lahore Resolution and later on became the Pakistan Resolution. Who was drafted it? Sikandar Hayat Khan drafted the Lahore Resolution. Lahore Resolution was drafted by the Sikandar Hayat Khan. On 23rd March 1940, A.K. Fazlul Haq presented this resolution at Minto Park, Lahore, now became as a Greater Iqbal Park in December 2016. A.K. Fazlul Haq was the Chief Minister of Bengal at that time. Now we'll see 25 members of Working Committee of AIML. AIML stand for All India Muslim League. 25 members of Working Committee of All India Muslim League drafted this statement on 22 March 1940. There was 25 members Working Committee of All India Muslim League which drafted this statement on 22 March 1940. Actually, the resolution was a formal statement of Muslim League. So we will use sometime the formal statement or the actual statement. This was it mean we will say about the resolution. Resolution was actually a statement. I hope you have understand. Now let's move and see key points of lecture जो रह गए हैं. Next है what was the demand in the political statement known as Pakistan Resolution. ये जो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, इस रेजोल्यूशन में डिमांड क्या थी? ये एक बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है
कि डिमांड क्या थी जो कि इस रेजोल्यूशन में की गई थी। आखिर इतना बड़ा ये इवेंट था, तो उसमें कोई मकसद होगा, कोई डिमांड होगी जो पेश की गई होगी, तो हम ये देखेंगे व्हाट वाज डिमांडेड इन दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट known as Pakistan Resolution. You know, the Pakistan Resolution was earlier known as the Lahore Resolution. So, the Lahore Resolution was a formal statement in which a separate Muslim state was demanded. तो लाहौर जो रेजोल्यूशन है वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट थी, यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट थी मुस्लिम लीग की, जिसमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड की गई थी। यही था इसका लुब्बे लुबाब कि डिमांड सेपरेट मुस्लिम स्टेट। Now, next move and see, is there any monument in honor of this famous resolution? Yes, there is a monument in Lahore, Iqbal Park, in honor of Pakistan resolution. यादगार पाकिस्तान, जो एक मीनार पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है, उसको यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता था। और ये अभी जो 2016 में इसकी एक्सपेंशन करके और रेनोवेशन करके इस मिंटो पार्क को इकबाल पार्क का नाम दिया गया है, ग्रेटर इकबाल पार्क। तो उसमें ये एक मीनार है जिसको कहते हैं मीनार पाकिस्तान। दिस इज़ द मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट कहते हैं यादगार को, तो इसीलिए हम इसको यादगार पाकिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं अब इसको, व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन। Now, this is Lahore Resolution was considered the landmark document in the history of subcontinent. तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है इसको एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट समझा जाता है तारीख में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग held 27th annual general session between March 22 and 24 at Minto Park, Lahore, now known as Greater Iqbal Park. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये 27वां एनुअल जनरल सेशन था, जो कि 22 मार्च से लेकर 24 मार्च के दरमियान में मिंटो पार्क लाहौर में हुआ। उसमें 23 मार्च 1940 को जो है वो रेजोल्यूशन पास की गई, जो रेजोल्यूशन थी वो प्रेजेंट की गई। On 23 March 1940, this historical resolution was, which was first called the Lahore Resolution and in the later years known as the Pakistan Resolution, was presented. तो ये प्रेजेंट कब की गई? 23 मार्च को। और मैन्यूमेंट कॉल मीनार पाकिस्तान स्टैंड इन लाहौर इन ऑनर ऑफ दिस फेमस रेजोल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। डू यू नो March 23 is observed as national holiday in Pakistan to celebrate the Republic Day to commemorate the Lahore Resolution. तो लाहौर रेजोल्यूशन की याद में हम रिपब्लिक डे को मनाते हैं 23 मार्च को, और उसमें हम कौमी छुट्टी को एंजॉय करते हैं। ठीक है जी, उस दिन हमें छुट्टी होती है और हम रिपब्लिक डे को कोमेमोरेट करते हैं। नेक्स्ट, एट फर्स्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस्ड ऑन द फर्स्ट डे of the session. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered a speech saying that the Hindus and the Muslims were two different nations deriving their inspiration from different sources and personalities. तो ये यहाँ पे आके जो बहुत अरसा पहले मुसलमानों को सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया था कि मुसलमान और हिंदू
दो अलग अलग कौमें हैं, उसी दो कौमें नज़रिए की यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 1940 23 March in his address that Hindu and Muslims are two different nations which has derived their inspiration from different sources and personalities. सोर्सेज क्या है और पर्सनैलिटीज़ क्या है, यानी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्पायरेशन लेते हैं और कुरान पाक से सुन्नत से लेते हैं, और हिंदू जो हैं वो वेदास से और उनके जो डिफरेंट गॉड्स हैं, भगवान हैं, भगवान कृष्ण, राम, लक्ष्मण, हनुमान और इस तरह के जो हैं उनसे वो इंस्पायरेशन लेते हैं और उनकी बुक है वेदास महाभारता. नेक्स्ट, कायद said मुसलमान्स आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ ए नेशनहुड. किसी भी जो तारीफ है कोई भी नेशनहुड की, कौमियत की, हर डेफिनेशन के लिहाज से मुसलमान एक कौम हैं, और यही कौमियत का तसव्वुर था अल्लामा इकबाल का कि पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ पे भी कोई मुसलमान है वो विदाउट एनी जोग्राफी लिमिटेशन is a Muslim nation. And further, Qaid-e-Azam said, we wish our people to develop to the fullest spiritual, cultural, economic, social and political life in a way that we think best and in consonance with our own ideals and according to the genius of our people. कायद आज़म ने फरमाया था कि हमारी जो ख्वाहिश है कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को पूरी तरीके से डेवलप करें, अपनी रूहानी, समाजी, माशी और जो कल्चरल और सियासी ज़िंदगी है उस तरीके से जिस तरह वो सोचते हैं कि ये बेस्ट है, और हमारे जो अपने आइडियल्स हैं उनके साथ मुताबिकत रखती है, और हमारे जो जीनियस पीपल हैं उनके साथ ये मुताबिकत रखती है. तो इस तरह के हम आज़ादी के साथ इन चीज़ों को डेवलप करने की ख्वाहिश रखते हैं. नेक्स्ट, we will see what was the proceedings of this historical movement or historical resolution. At first we see the proceeding of this resolution. Proceeding वो होता है कि कोई फॉर्मल इवेंट जो हो रहा होता है उसकी जितने भी कर वो इवेंट हो रहा होता है उसको प्रोसीडिंग कहते हैं. प्रोसीडिंग रेजोल्यूशन. ऑन 23 March 1940 A.K. Fazlul Haq, then the chief minister of Bengal province, moved the resolution in the जनरल सेशन विच कॉल्ड द लाहौर रेजोल्यूशन. तो जो मुस्लिम लीग का जनरल सेशन था 23 मार्च 1940 को, उसमें जो ए के फजलुल हक जो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे या वज़ीर आला थे बंगाल के, उन्होंने इसको मूव किया. नेक्स्ट वी सी दैट व्हाट वाज रेजोल्यूशन सेइंग, कि इस रेजोल्यूशन में था क्या, ये क्या क्या रही थी. नो वी लर्न the answer of this fundamental question, that what was the formal statement of resolution without, ये हम देखेंगे कि इसमें स्टेटमेंट, फॉर्मल जो स्टेटमेंट थी उस रेजोल्यूशन की वो क्या थी. विदाउट एनी डिले लेट्स मूव टू आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, that is the saying of resolution. It is quoted uh, as quote unquote. We will discuss that the area in which Muslims are numerically in majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. तो क्या था जी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट थी कि मुसलमान एरियाज़ जहाँ पे
तादाद के लिहाज से अक्सरियत में हैं, यानी कि शुमाल, मगरबी और मशरकी ज़ोन के अंदर जो इंडिया में, इनको एक ग्रुप इनका बना दिया जाए और इनको जो है इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, और जो कि ऑटोनमस भी हों और सावरन भी हों। ठीक है जी, मुक्तदर भी हों और ऑटोनमस भी हों, पावरफुल भी हों, खुद कार निज़ाम हो उनका अपना, सेल्फ रिलायंस सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि in last slides we have studied that A.K. Fazlul Haq was presented this resolution. Now we will see the resolution was seconded by Halikuzaman. तो चौधरी हलीकुज़्ज़मान ने इसको जो है इसके साथ अपना जो है यकजहती दिखाई थी या उसको तस्लीम किया था। सेकंड करने का मतलब होता है कि उसको एज इट इज़ मान लेना और उसके साथ देना। Later, Maulana Zafar Ali Khan from Punjab, Sar Abdullah Harun from Sindh, Qazi Muhammad Isa from Balochistan, and Sardar Aurangzeb from North Western Frontier Province (NWFP). Now it is known as Khyber Pakhtunkhwa (KPK), extended their support to the resolution. तो उसके बाद ये जो नाम लिए मैंने उनमें आ जाते हैं लेटर मौलाना ज़फ़र अली खान पंजाब से, सर अब्दुल्ला हरून सिंध से, काजी मोहम्मद ईसा, काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं, काजी मोहम्मद ईसा जो हैं वो बलूचिस्तान से, और सरदार औरंगज़ेब जो थे वो थे सूबा सरहद से, जो कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा है। इन्होंने अपने सपोर्ट को शो किया था और इसके साथ इजहार यकजहती किया था कि हम भी यही चाहते हैं जो ये है, जो कुछ इसमें लिखा है हम उसके फुल सपोर्टर हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस, नो वी विल प्रोसीड टू दी सी or analyze what was the significance of this important resolution. For this, why is the Pakistan resolution is an important landmark in Pakistan movement? It is answer of this question is the Lahore Resolution, later called Pakistan Resolution, is the most important milestone during the struggle for Pakistan. This resolution made it clear that there was only one destination for the Muslims of the subcontinent, Pakistan. Earlier, there as a demand for the separate electorate. Muslims then voiced their demand for a separate state. Both the British and Hindu rejected this resolution, which placed under the leadership of Qaid Azam. तो ये क्या थी जी, लाहौर रेजोल्यूशन, जो कि बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन बन गई। वो बहुत ही एक अहम जो माइलस्टोन, संग मील है पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसमें। ये रेजोल्यूशन क्लियर करती है कि मुसलमानों की सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन है और वो है पाकिस्तान, एक मुस्लिम स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट। तो पाकिस्तान अर्लियर देयर एज ए डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट, पहले मुसलमानों की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने और नेहरू रिपोर्ट और इस तरह की और जो इवेंट थे वो हुए, तो उसके बाद एट द एंड द फाइनल was Congress ministries which compelled the Muslim leaders to demand for a separate homeland. तो पहले पहले क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा था, लेकिन बाद में फिर सेपरेट स्टेट का मुतालबा कर दिया मुसलमाना ने, बरसगीर ने। मुस्लिम्स देन वॉइस्ड देयर डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, फिर मुसलमानों ने अपनी सेपरेट जो स्टेट थी उसके लिए आवाज़ उठानी शुरू की। बोथ द ब्रिटिश एंड हिंदूज रिजेक्टेड दिस रेजोल्यूशन विच प्लेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म की ज़ेर क़यादत जो ये रेजोल्यूशन प्लेस की गई थी, इसको हिंदुओं और जो बरतानवी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्ट you should know. Lahore Resolution passed on March 24, 1940, but the Pakistan Day is celebrated on March 23rd. It is very critical question.
why we celebrate this day, Pakistan Day, on 23rd March, while the Lahore Resolution was passed on March 24. तो इसका आंसर है it is because this landmark resolution was presented to annual general session of All India Muslim League on March 23, 1940. तो मेरे दोस्तों, ये हम 23rd मार्च को इसलिए मनाते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है ये 23rd मार्च को पेश की गई थी, तो उस पेश करने वाले दिन को हम एज ए रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और उसकी याद मनाते हैं 23rd मार्च को जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कन्फ्यूजन हो, कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पेस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।